जय जिनेन्द्र मथेनम वंदामी। हूँ भावना दीपक मेहता पुणे। गुरु पूनम पहला गुरुनी समझण। गुरु शू छे? गुरु ए दरेक सवालनो जवाब छे। गुरु ए दरेक मुश्केलीनी युक्ति छे। गुरु ए ज्ञाननो भंडार छे। गुरु मार्गदर्शक छे। गुरु ए अनुभूति छे। गुरु ए प्रेम छे। गुरु ज्ञाननी वाणी छे। गुरु ए आपणा जीवननो चमत्कार छे। गुरु एक मित्र छे। गुरु भगवान स्वरूप छे। गुरु ए आध्यात्मिकतानी व्याख्या छे। धन्य छे ते जे लोको गुरु साथे संपर्कमां छे अने तेमनी सानिध्यमां जीवनનું થોડું જ્ઞાન અને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની તક મળી। ગુરુ શબ્દ અને ગુરુનું જીવન સમુદ્રની ઊંડાઈ જેટલું છે, જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી। આખી ધરતીને કાવળ કરું, બધી વનરાયની લેખની, સાત સમુંદરની શાહી કરું, ગુરુ તણા ગુણા ન લખી શકાય। ગુરુનું મહત્વ करता करे न कर शके, गुरु करे सब होय। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरुनो हाथ पकड़वाने बदले तमारो हाथ गुरुने पकड़ावो, कारण के आपणे आकस्मिक रीते गुरुनो हाथ छोड़ी शकीए छीए, परंतु गुरु जेनो हाथ पकड़े ते कदी छोड़ता नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विना ज्ञान अधूरू छे। गुरु आपणे साचो रस्तो बतावे छे, તેથી આપણે ગુરુની દરેક આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોવે। ભગવાન શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણએ પણ ગુરુ પાસે શિક્ષણ મેળવ્યું હતું। આપણા ગ્રંથોમાં ગુરુ ભક્તિના ઘણા ઉદાહરણો છે। ગુરુ જ માર્ગદર્શક છે। આત્મા માટે તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવો પડશે। ગુરુએ રસ્તો બતાવ્યો છે, તમારે ચાલવું પડશે। ગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો છે, તમારે અનુસરવું પડશે। મુક્તિ ગુરુની વાહવા દ્વારા પ્રાપ્ત થતી નથી। ગુરુ વચન પ્રમાણે ચાલવાથી મોક્ષ મળે છે। ગુરુદ્વાર પર જ્યારે જવું હોય તો હૃદય શુદ્ધ કરીને જવું। જ્યારે ગુરુની વાત સાંભળવી, તમારા કાન ખુલ્લા રાખો। જ્યારે ગુરુમાં વિશ્વાસ કરવો હોય તો તમારી આંખો બંધ રાખો। જ્યારે ગુરુઓ સત્સંગ સાંભળવો હોય તો મોં બંધ રાખો। ગુરુની સેવા ક્યારે કરવી હોય તો ઘડિયાળ બંધ રાખો। જ્યારે ગુરુ પાસે વિનંતી કરવી હોય તો દિલ ખોલી દેવું। આ ગુરુનો દ્વાર છે, તે અહીં મનમાની નથી થતી। એ પણ વાત પાક્કી છે, અહીં કોઈ પરેશાની નથી હોતી। જય जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं तरुणा प्रकाश बंबोरी आज आपके सामने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। The Guru is definitely not a person, but also for the some experience that we have all the lifetime. We all have heard the song, life is the greatest of all the teachers. It has its own way of teaching us. So today, not losing the moment of life, I would like to express 3 special gratitude to my Gurus. To the one very first, who revealed to me what is to be known, that which takes the form of the entire universe. I express my gratitude to my parents, to the one. Secondly, who opened up my eyes, which was blinded by darkness of ignorance, and with the brightness of self-knowledge, I express my gratitude to all the learning teachers. Third, to those who fueled my life inquired. By definition, they are nameless, without attributes, and therefore
and undescribable. It's now that I can book in front of them to all the teachers and gurus in my life. I express my third gratitude to them, and lastly, to those because of which I am firm on my values, that is my Dharma Guru. Yes, I express my gratitude to all of you being teachers. I would conclude by saying only those who aspires that to delight in the truth can function as a true guru for us, as we make our own way from ignorance to a more enlightened understanding. Thank you. गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं गायत्री प्रवीण देसड़ा वाकड़ से। भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य श्री धर्मशिला जी महाराज साहब को शत शत वंदना। परम पूज्य श्री किशन लाल जी महाराज साहब, पूज्य श्री पुण्यशिला जी महाराज साहब, पूज्य श्री कीर्तिशिला जी महाराज साहब के चरणों में शत शत प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। चांद को देखो, उस पे भी दाग होता है। बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है उसकी, जिनके सर पे गुरुवर का हाथ होता है। ज्ञान के पुजारी होते हैं गुरु, दुनिया के झूठे मेले में रास्ता दिखाते हैं गुरु। मुश्किल में ओठों पे जिसका नाम आता है वो गुरु। चांद सी शीतलता और सूरज सा प्रकाश जो देते हैं वो है गुरु। इसीलिए जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, जो डूबती नैया तिराते हैं, जिनके सहारे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गिरते वक्त में हमें संभालते हैं, वो है मेरे गुरु। इस प्रकार मैं आभा को कागज बनाऊं, पेड़ को लेखनी और समुंदर को स्याही बनाऊं, तो भी गुरु के गुण ना लिख पाऊं। ऐसे मेरे गुरु के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे। गुरुदेव इतनी ऊर्जा हो आपकी कि उगता सूरज भी प्रकाश मांगे आपसे, कि उगता सूरज भी प्रकाश मांगे आपसे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं चेतना प्रवीण जी देसरडा वाकड़ से। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य गुरनी मैया डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब के चरणों में शत शत प्रणाम। पूज्य किशन लाल जी महाराज साहब, पूज्य पुण्यशिला जी महाराज साहब, पूज्य कीर्तिशिला जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला, इसलिए महाराज साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहते हैं 1000 शब्दों की ताकत एक चित्र में होती है, 1000 चित्र की ताकत एक शिक्षक में होती है, 1000 शिक्षक की ताकत एक माता में होती है, और 1000 माताओं की ताकत एक गुरुदेव में होती है, एक गुरुदेव में होती है। इसलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। पानी की बूंद कीचड़ में गिरी तो खत्म हो जाती है, वही बूंद अगर हाथ पे गिरी तो चमकती है, वही बूंद अगर सीप में गिर जाए तो उसका मोती बनता है। वैसे ही जो गुरु के शरण में आए, उनके संपर्क में आए, उसका जीवन निहाल हो जाता है। जिनके पास हर समस्या का समाधान हो, जो विद्या का दान देते हैं, ज्ञान देकर हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे कर सकते हैं, पुण्य का बंध कैसे बांधते हैं, इसका मार्ग बताते हैं। जीवनात शिखर गाठायचे असेल, यशस्वी व्हायचे असेल तर धैर्य खचू देऊ नका, यशस्वी व्हाल असे परखडपणे सांगणारे गुरुदेव असतात। अंत में
इतना ही कहना चाहूंगी, सूरज से प्रकाश मिले ना मिले, हमें आपकी रोशनी चाहिए। चांद से शीतलता मिले ना मिले, हमें आपकी ठंडक चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमें आपका सहारा चाहिए, आपका सहारा चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं सुनीता छाजेड़, इगतपुरी। गुरु होते हैं सबसे महान, वो देते हैं सबको ज्ञान। आओ इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम करें गुरु को प्रणाम, हम करें गुरु को प्रणाम। बिना साधन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जैसे दर्जी कितना भी कुशल क्यों न हो, बिना सुई कैंची धागे के वो वस्त्र नहीं सिल सकता। चिकित्सक कितना भी होशियार क्यों न हो, बिना शस्त्र के वो शस्त्रक्रिया नहीं कर सकता। कुंभकार कितना भी कुशल क्यों न हो, बिना मिट्टी डंडे के वो घड़े का निर्माण नहीं कर सकता। उसी तरह बिना गुरु के हमारा जीवन संस्कारित नहीं हो सकता। कबीर का एक दोहा याद आया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। एक विदेशी विद्वान ने कहा है, गुरु मोमबत्ती की तरह होते हैं जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाशित करते हैं। जहाज का कप्तान यात्रियों से जहाज को सुरक्षित जगह पे पहुंचाता है, उसी तरह गुरु हमें हमारी जीवन रूपी जहाज की यात्रा में सहायक होते हैं। एक बार बादशाह सिकंदर अपने गुरु के साथ नदी के पार जा रहे थे। नदी को बाढ़ आ गई तो गुरु ने कहा, सिकंदर तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कितना पानी है। तो सिकंदर ने कहा, नहीं गुरुजी, आप रुकिए, मैं देखता हूँ कितना पानी है। तो गुरुजी ने कहा, नहीं सिकंदर, अगर तुझे कुछ हो गया तो सिकंदर ने कहा, गुरुजी अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे जैसे हजारों हजार शिष्यों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपके जैसा गुरु कहाँ से लाऊंगा। एक शिष्य गुरु का निर्माण नहीं कर सकता, हाँ एक गुरु हजारों हजार शिष्यों का निर्माण कर सकता है। अगर किसी ने पूछा अंधकार कहाँ है तो जवाब आ जाएगा, जहाँ सूरज नहीं वहाँ अंधकार है। पर मैं कहूँगी नहीं, जहाँ गुरु नहीं वहाँ अंधकार है, जहाँ गुरु नहीं वहाँ अंधकार है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं शारदा छाजेड़, चिंचवड़, पूना से। अहिंसा का डंका बजाया था वीर ने, धर्म पर बलिदान हटाया था वीर ने, अज्ञान अंधकार को मिटाया था वीर ने, जियो और जीने दो को सिखाया था वीर ने, जियो और जीने दो को सिखाया था वीर ने। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान का शासन जयवंत चल रहा है। भगवान कठोर से कठोर हृदय वाले के आत्मा में पिघल जाए ऐसे एक महान साधक थे। नारी जाति के उद्धारक इस अवसर पर निकाल के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। उनकी सोच इतनी पवित्र थी, उसी के कारण उन्होंने समझाया कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, लेकिन पुरुषार्थ स्वयं ने करना होगा। उनके उपदेशों पर चलकर ही जीवन में शांति और सुख संभव है। चिट्ठी में भी हमारे तरह प्राण है, अतः उन्हें भी कष्ट न देना यह मानवता के हित में नहीं है। अगर हम इसी सिद्धांत और आदर्शों पर चलते, अपने जीवन में उतारते, तो आज यह कोरोना जैसा छोटा सा एकेंद्रीय जीव विश्व में महामारी नहीं फैलाता। इस घोर कलयुग में हमें प्रभु के सिद्धांतों पर चलकर ही जीवन में खुशहाल बना सकते हैं। जिनेश्वर भगवान धर्म पक्ष में जिनेश्वरों के सर्वोत्तम नेता थे। केवल ज्ञानी और निर्दोष चारित्रवान थे। संसार समुद्र से तिरने वाले परमार्थ और अनंत ज्ञानवान थे। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले महापुरुष थे। स्वयंभू रमन महासमुद्र के शुद्ध एवं अक्षय जल की भांति भगवान की प्रज्ञा विशुद्ध और अनंत थी। वे निर्मल थे, कषायों से रहित थे, कर्मों से मुक्त थे तथा देवाधिपति शकेंद्र के समान दीप्तिमान थे। भगवान श्रेष्ठ तपस्वी थे। भगवान की समान उत्तम ज्ञानी और कोई नहीं था। भगवान सहनशील थे। इतनी श्रेष्ठता थी, उन्होंने अष्टकर्मों का नाश किया। भगवान क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी आत्मिक दोषों का त्याग करके अनंत महर्षि हुए। उन्होंने न तो स्वयं पाप किया और न दूसरों से पाप कराया।
भगवान हमारे 2600 साल पुराने साइंटिस्ट थे। जो खोज उन्होंने 2600 साल पुराने की वो जानकारी हमें वर्तमान में हमारे साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। अब वर्तमान में इतने गुणों के भंडार, इतनी जानकारी हमें डिटेल्स में अवगत कराया था। इतने महान उपकारी श्रेष्ठ आत्मा थी भगवान की। इन्हीं की वजह से हमें हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों की प्राप्ति हुई। भगवान क्या थे, कितने महान श्रेष्ठ उपकारी दयावान प्यार से भरे थे। शब्दों में कह पाना नामुमकिन है, क्योंकि इतने गुणों के भंडारी जो थे भगवान। वक्त की मर्यादा के ख्याल रखते हुए मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय आनंद, जय महावीर, धन्यवाद। और महाराष्ट्र जैन वार्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि भगवान के सिद्धांतों को जन जन तक फैलाने का उन्होंने हमें मौका दिया है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सबको, जो मेरे गुरु हैं उन सबको आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का, हमारे अंदर जो वीक पॉइंट है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, उसको दूर करने का काम सिर्फ गुरु ही कर सकता है। हमारा सबसे पहला गुरु होता है, वो है हमारी माँ, जो हमें जन्म देती है, इतनी प्यारी दुनिया देखने का मौका दिया है। तो सबसे पहले थैंक यू माँ और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। भगवान को भी पता था कि सबसे सेफ साइड, सबसे सॉफ्ट वाला कॉर्नर वो है माँ की गोद। इसीलिए भगवान ने जब भी हमें सांस लेने का राइट्स दिया, सांस लेने का अधिकार दिया, तो भगवान ने हमें सबसे पहले कहाँ रखा पता है ना सबको? वो है माँ की गोद में। तो इसीलिए हमारे लाइफ का सबसे पहला गुरु है हमारी माँ, जो हमें बचपन से लेके चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, यहाँ तक कि खाना कैसे खाए वो भी सिखाती है। तो इसीलिए हमें उनका उपकार कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फिर चाहे हम कहाँ भी पहुँच जाए, कहीं भी पहुँच जाए, हमें हमेशा उनका ऋणी रहना चाहिए। दूसरे गुरु होते हैं हमारे टीचर्स, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें दुनिया की बहुत सारे बातों का नॉलेज देते हैं। वो इसलिए हमारे गुरु होते हैं क्योंकि जो बाहर की दुनिया होती है, इसका नॉलेज हम बुक्स में पढ़ के ही नहीं, सिर्फ बुक में पढ़कर ही नहीं जान सकते हैं। तो हमें इसके लिए वो समझना पड़ता है ठीक से, हमारे अंदर उसको फील करना पड़ता है, और ये सब काम हमारे टीचर लोग कराते हैं। तो इसके लिए सेकंड वाला गुरु होते हैं हमारे टीचर। तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, वो हमारी बेटी हो, बेटा हो, या फिर हमारा फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी हो एक्सेट्रा, कि ऐसा नहीं है कि गुरु सिर्फ बड़ा होता है हमसे उम्र में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गुरु वो होता है जो हमें हमारी गलतियों का एहसास कराए। गुरु वो होता है जो हमें ज्ञान दिलाए। गुरु वो होता है जो सच्चाई है वो हमें सामने हमारे ला के रखे। फिर चाहे वो फ्रेंड भी हो, कभी कभी हम अगर हमारी गलतियाँ कोई हमें बोले ना, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। बट नहीं, जो हमारी गलतियाँ बोलता है, जो हमें अच्छी राह पर जाने का मार्गदर्शन करता है, वो सच में हमारे लाइफ का गुरु होता है। तो उनके उपकार कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु का साथ हो, तो सारी दुनिया में अकेलापन महसूस ही नहीं होता है। ओ मेरे गुरु क्यों फिक्र करूं, जब साथ मेरे तू हर दम है। कोई साथ रहे या रहे ना मेरे, तू है फिर मुझको क्या गम है। तेरे चरणों में रख लेना सदा मुझ पे ये रहम रखना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ना मुझको तू इतराना हम सब पे ये रहम करना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सच में अगर कोई साथ रहे या ना रहे, पर अगर गुरु का साथ है, गुरु का आशीर्वाद है,
तो पूरी दुनिया में हमें अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे गुरु आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जो अभी यहाँ पे है तो नहीं, बट उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और मैं कुछ भी कार्य करूँ तो मैं सबसे पहले उनको वंदन नमन करके अगर मैं मेरा कार्य शुरू करूँ तो आज तक मुझे कभी भी वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ निगेटिविटी आने का सवाल ही नहीं रहा। इतना मुझे उन पर भरोसा है। तो हमेशा गुरु के शब्दों पे, उनके आशीर्वाद पे भरोसा रखना चाहिए। गुरु अगर एक बार बोल दे तो वो बात लक्ष्मण रेखा की तरह हमें हमारे लाइफ में, हमें हमारे जीवन में वो अपनानी चाहिए। अगर हम ऐसा करें, हम गुरु अगर हमें बोले कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप सबको पता है गुरु एकलव्य को बहुत बड़ा धनुर्विद्या, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्विद्या होना था, है ना, पता है ना आपको। पर फिर भी उन्होंने एक पुतले को सामने रखकर, द्रोणाचार्य जी के पुतले को सामने रखकर इतनी अच्छी विद्या सीखी। और वो सच में पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर थे। पर जब गुरु ने उनको दक्षिणा में उनका अंगूठा मांगा, जो तीर चलाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो हमारा अंगूठा, फिर भी उन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए अपना अंगूठा निकाल के गुरुदेव को दिया, है ना। तो इसी तरह, और जब भी गुरु शिष्य की बात होती है तो सबसे आगे किसका नाम आता है? एकलव्य और द्रोणाचार्य जी का। क्यों? क्योंकि जो गुरु के शब्दों पर संदेह नहीं करता है, जो गुरु के शब्द को मानता है, वो हमेशा श्रेष्ठ बन जाता है। इसीलिए लाइफ में गुरु होना बहुत आवश्यक है। फिर चाहे वो कोई भी हो, पर किसी ना किसी को हमारा गुरु बनाना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। और फिर से एक बार हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मैं शिरडी से प्रेरणा मनीष जी लोड़ा। थैंक यू। पंच परमेश्वरी भगवत श्रमण भगवान महावीर, गुरु आनंद और सभी साधु संतों के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन। मैं प्रिया लुनिया पेश कर रही हूँ विषय गुरु एवं गुरु पूर्णिमा। बड़ा ही खूबसूरत दोहा है। धरती का कागज करूँ लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मासी करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण को वर्णन करना, गुरु गुण को बताना तो बड़ी कठिन बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु के प्रति मेरे भावों को प्रकट करने की। गुरु, गु यानी गुण, रू यानी रूह। अपने रूह तक गुणों को पहुंचाने वाला ऐसा गुरु तो हमें कई रूपों में, कई जगह मिलता है। परमात्मा ईश्वर जो हमें जीवन का अंश देता है, हमारे माता पिता जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, शिक्षक जो हमारे जीवन के आकार को और खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। कहते हैं ना, अंधेरे में गुरु प्रकाश की रोशनी होता है, रात के अंधेरे में गुरु तो चांदनी होता है। गुरु चारों धाम, इसीलिए बंदे निडर होके जप ले तो गुरु का नाम। पर इसी के बराबर संकट काल, जिस कोरोना में हम हैं, महामारी में, वो संकट काल हमारे जीवन में आने वाले हर अच्छे बुरे अनुभव हमारे गुरु ही है। तो इन सभी मूर्त अमूर्त गुरुओं के चरणों के प्रति हम कोटिशः वंदन करेंगे और कहेंगे कि गुरु तो हमारे जीवन को आकार देने वाला इंजीनियर भी है, हमारी सब दवाइयों को इलाज करके हमें ज्ञान की दवाई देने वाला डॉक्टर भी है। गुरु तो सब है। ऐसे गुरु के प्रति मेरा समर्पण भाव, त्याग भाव व्यक्त करती हूँ। और आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे सभी गुरुओं को, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, चाहे मेरे जीवन में आने वाले अच्छे बुरे अनुभव हो, चाहे वो निसर्ग हो, चाहे वो हर चीज हो जो मुझे सिखाती है, उन सभी गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जिनेंद्र। आज है गुरु पूर्णिमा। जहाँ होता है गुरु का साथ, वही होता है पापों का नाश। गुरु वो है जो हमें संसार समुद्र से तारते हैं, अज्ञान अंधकार से मिटाते हैं और मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। जैसे एक रोगी अपना रोग लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सही इलाज देकर रोग मुक्त करता है, वैसे ही हमारे जीवन में गुरु डॉक्टर से भी बढ़कर है। हमें भव से तारते हैं और मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, न बिना ज्ञान विज्ञाने मोक्षस्य दिग्मो भवतम, न बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्य दिग्मम स्मृतम। यानी कि
एक छोटा सा दृष्टांत है महाभारत का, जब दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं संग्राम के लिए स्थित थी और तभी युधिष्ठिर ने कौरव के सेनाओं के अंदर जाकर गुरुद्रोण और पितामह के चरण स्पर्श किए। यह देखकर अर्जुन चिंतित हुए और उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान, यह भ्राता क्या कर रहे हैं? तभी कृष्ण ने बड़े ही सरल और सौम्यता से कहा कि भ्राता युधिष्ठिर ने इनके चरण स्पर्श करके यही आधा महाभारत जीत लिया। इस दृष्टांत से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम गुरु का आदर सम्मान करें तो हम जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थितियों में आगे जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि 2 मिनट बोलना है, पर 2 मिनट तो क्या, 2 घंटे, 2 दिन, यहाँ तक 2 साल भी कहे तो भी हमें कम पड़ेंगे गुरु का वर्णन करने के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जहाँ होता है गुरु का साथ, जहाँ होता है गुरु का साथ, वही होता है पापों का नाश, वही होता है पापों का नाश। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मैं हिमाक्षी रुनवाल चिंचवड से आपके सामने गुरु पूर्णिमा के विषय अपने भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। सुना है आंगन, खेती है धड़कन, गुरुवर किती सुदाजी मारसा, आदि ठाणा के चरणों में कोटिशा वंदन। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु बिन घोर अंधकार, पलक न विसरू तुम भनी, गुरु मुझे प्राण आधार। जीवन में गुरु का स्थान होना ही चाहिए। जीवन में एक गुरु तो होना ही चाहिए। गुरु हमें अच्छे संस्कार देता है। गुरु हमें कठिनाई से सामना सिखाता है। गुरु डॉक्टर से भी बढ़कर डॉक्टर का काम करता है। गुरु टैबलेट का काम करता है। गुरु सलाइन जैसी एनर्जी का काम करता है, जिससे हमारे नसों नसों में एनर्जी आती है। डॉक्टर कहते हैं कि रात को खाना मत खाओ, गर्म पानी पियो, लेकिन हमारे गुरु भगवान महावीर स्वामी तो 2500 वर्ष पहले कह गए, लेकिन साइंस अब कहता है गुरु के जब तब से ऑपरेशन भी टल जाते हैं। गुरु कहते हैं कि जब भी बाहर जाओ, कोई कठिनाई आए तो हमें नवकार महामंत्र का स्मरण और जाप करना चाहिए, जिससे सब कठिनाई और बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए गुरु डॉक्टर से भी बढ़कर श्रेष्ठ गुरु है। गुरु है तो हम है, गुरु नहीं तो हम नहीं। इसलिए गुरु हमारे जीवन में डॉक्टर का काम करते हैं, डिस्टर्बेंस का नहीं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र, जय महावीर। किसी महान विशेषज्ञ ने कहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता जड़े, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जन्म अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसमें से यह जैन कुल बड़ा ही दुर्लभ है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष पत्ता जड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। यह कड़वा सत्य है। हम हर कोई ये जानते हैं, समझते हैं, पर इसे समझने के बाद भी हम समझना नहीं चाहते। आज का हमारा विषय है, गुरु डॉक्टर है या डिस्टर्ब। आज जैसे बाहरी शरीर को स्वस्थ मस्त रखने के लिए हमें डॉक्टर की आवश्यकता रहती है, उसी तरह आंतरिक शरीर यानी हमारी आत्मा को स्वस्थ मस्त रखने का काम हमारे गुरु करते हैं। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए। अर्थात बहुमूल्य हीरा भी पत्थर है यदि वह आम इंसान के पास है, पर यह पत्थर लाखों का हो जाता है जब उसकी नजर जोहरी से गुजरती है। गुरु ही है वो जो हम साधारण मानव को साता असाता, जन्म मरण, रोग शोक, बचपन बुढ़ापा, ऊंच नीच आदि दुखों से मुक्त एवं शाश्वत सुख को पाने का मार्ग यानी मोक्ष मार्ग दिखाते हैं, जहाँ से संसार में वापसी न करनी पड़े। साधुजनों का दर्शन ही महापुण्यदायक है। सूरज बाहर के तम को सदा हरा करता है, उसी तरह साधु मन के तन को दूर करता है, यानी गुरु ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा शब्द है डिस्टर्ब। यह चर्चा का विषय ही नहीं है कि गुरु लाइफ में डिस्टर्ब करता है। वह नास्तिक ही है जो इस विषय में चर्चा करना चाहेगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सर्वमान्य सर्वसम्मत है कि भगवान से पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। बीमार शरीर को डॉक्टर दवा द्वारा, सलाह द्वारा हमें ठीक करता है, वैसा ही बड़ा रोल हमारे गुरु का है। हमारे अस्थिर मन को, अशांत मन को स्थिरता देते हैं। वे अपने ज्ञान, अपने अनुभव द्वारा हमारी आत्मा को झंझोर देते हैं, हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। यानी हमारे जीवन को सार्थक करने का मूल मंत्र हमारे गुरुदेव ही हैं। सो मेरे गुरुदेव को तहे मन से, आत्मीय से मथेन वंदामी।